Students for video lecture of subject concrete technology. So we were seeing chemical admixtures in concrete, special concrete and extreme weather concreting. So today's topic of this video lecture is topic 6.3, that is called an hot weather concreting. Myself Roshali Mane, lecturer in Civil Department of Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. So vision of the institute: excellence in technical education to empower youth. Then mission: impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills. Then develop competent and employable diploma engineers and responsible citizens. Then strengthen industry institute interaction. Then mission of the department: to impart excellent civil engineering skills to develop employable civil diploma engineers. Then mission: imparting the modern technical skills as per the requirement of the industry to improve employability. Then to develop social and environmental responsible civil engineers. Then effective implementation of teaching learning process to benefit students. Then course outcome: use relevant admixture for concreting for different weather conditions. So in this topic we will see how concreting is to be conducted when you have different weather conditions, means too hot or too cold. Then in unit outcome we will see how to explain effect and preventive measures in given type of weathering concreting. So we can explain the effects and preventive measures for given type of weathering conditions. So too hot or too cold. Then select the type of weather concreting in the given situation with justification. Then program outcomes mapped here are: basic and discipline knowledge. You can solve the problems occurred in while concreting. Then you can design and development of solution. Then you can practice engineering services for society, sustainability and environment, and you will have this for lifelong learning. Then what is extreme weather concreting? So extreme weather concreting means concreting to be done in too hot or too cold climate. मतलब अगर climate बहुत hot है और बहुत cold है. So when climate is too hot or too cold, it is necessary to take precautions. मतलब प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है ताकि कंक्रीट जो है हमारा डिज़ायर्ड स्ट्रेंथ गेन करे और कोई डैमेज ना हो कंक्रीट में, कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो. तो extreme weather concrete it is generally well recognized that when concrete has to be mixed and placed in either way, very hot or very cold weather, it is necessary to take precautions to ensure that the concrete is not damaged or adversely affected by the ambient weather conditions. Then at temperatures below freezing, for example, freshly placed concrete may be damaged by formation of ice within its pore structure. सो जब कोल्ड वेदर में हम कंक्रीटिंग करेंगे तो उसके अंदर जो वाटर होता है, वाटर सीमेंट रेशियो के लिए जो वाटर यूज़ करते हैं या मिक्सिंग के लिए, तो वो वाटर क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा और वो स्ट्रक्चर को डैमेज करेगा. सो इन वेरी हॉट क्लाइमेट में क्या होता है कि कंक्रीट में स्टिफ प्रीमेच्योरली जल्दी सेट हो जाएगा और उसका कॉम्पैक्शन फिनिशिंग प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, जिससे क्या होगा, कंक्रीट जो है उसमें थर्मल क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगे. So too hot climate is also very dangerous for the concreting. Then it has perhaps not so well recognized, however, that even at moderate air temperature, strong dry winds can cause concrete to dry out prematurely and to crack. तो hot weather concreting में concrete जो है वो cracks generate करता है. Then what is hot weather concreting? तो hot weather concreting मतलब वो concrete होता है जिसमें कंक्रीट को अबव 40 डिग्री टेम्परेचर पे प्लेस किया जाता है. तो इन एनी केस कंक्रीट शुड नॉट बी प्लेस्ड और कंक्रीटिंग शुड नॉट बी डन अबव 40 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर टेम्परेचर है तो कंक्रीटिंग अवॉइड ही करना बेटर है. देन इन इंडिया समटाइम्स टेम्परेचर गोज अप टू 45 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड. तो इसलिए क्या होता है कि कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे वाइल मिक्सिंग, प्लेसिंग एंड कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट. तो क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं?
द इफेक्ट्स ऑफ हाई टेम्परेचर कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज। कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं? तो ड्यू टू हॉट वेदर क्या होता है कि रैपिड रेट ऑफ हार्डनिंग होता है, जो डिफ़िकल्टी देता है ट्रांसपोर्टेशन में। जल्दी अगर हार्डनिंग हो गया तो क्या होगा, अगर हम साइड पे कंक्रीटिंग नहीं कर रहे, अगर हमको कंक्रीट ट्रांसपोर्ट करना है कहीं से, तो उस समय कंक्रीट जो है वो दिक्कत, मतलब कंक्रीट जो है वो जल्दी हार्डन सेटिंग हो जाएगा, तो वो दिक्कत जाती है ट्रांसपोर्टेशन में। देन जो मिक्सिंग वाटर है वो अगर इवापोरेट हो गया तो क्या होगा, वाटर सीमेंट रेशियो जो है वो अफेक्ट करेगा और वर्केबिलिटी भी नहीं मिल पाएगी। इसलिए जो मिक्सिंग वाटर हॉट वेदर में जनरली इवापोरेट हो जाता है, तो वो प्रॉब्लम देता है। देन वाटर क्या है, अगर ड्राई वेदर है तो क्या होगा, फॉर्म वर्क वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, एग्रीगेट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, ग्राउंड एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हीट रही तो इससे क्या होगा कि हमारा हाइड्रेशन कंप्लीट नहीं होगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो कम पड़ेगा, जो हमारा वाटर सीमेंट रेशियो का वाटर है वो फॉर्म वर्क, एग्रीगेट और ग्राउंड एब्जॉर्ब कर लेगा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से। देन श्रिंकेज क्रैक्स आ जाएंगे कंक्रीट में इनकम्प्लीट हाइड्रेशन की वजह से, क्योंकि हमारा पानी जो है वो फॉर्म वर्क, एग्रीगेट्स और ग्राउंड ने खींच लिया है, तो इसलिए वो भी एक प्रॉब्लम हो जाएगा। देन कंटिन्यूस क्यूरिंग करना ज़रूरी है टू कीप ह्यूमिडिटी, और फर्दर जो क्रैक्स है वो आने से बचाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि कंटिन्यूस क्यूरिंग करते रहना होता है। देन एयर एंट्रेंड इन कंक्रीट में गेट एक्सपेल्ड ड्यू टू टेम्परेचर, हेंस वर्केबिलिटी में रिड्यूस एडिशनली। देन प्रिकॉशंस फॉर हॉट वेदरिंग, तो हॉट वेदरिंग में क्या होता है कि हमको डिले अवॉइड करना है। कोई भी केस में ट्रांसपोर्टेशन अगर कर रहे हैं हम तो वो क्विक करना है, और डिले जो है वो हार्डनिंग को अवॉइड करना है। देन कंक्रीट शुड बी कवर्ड विथ पॉलीथीन बिफोर एंड आफ्टर कंक्रीटिंग वर्क टू मिनिमाइज डिफेक्ट्स। देन before placing, water should be sprinkled on ground and formwork to avoid water absorption from concrete mix. Then concreting work should be done during night time only, मतलब शाम में टेम्परेचर लो हो जाता है तो उस टाइम कंक्रीटिंग करना बेटर रहेगा। देन रिटार्डिंग एडमिक्सचर शुड बी यूज टू reduce rate of setting. Then low heat cement should be preferred to minimize heat evolution. Then high water cement ratio and ice crystal should be used to maintain workability. तो हाई वाटर सीमेंट रेशियो यूज़ करना है। देन कंक्रीटिंग इन कोल्ड वेदर, द टेम्परेचर ऑफ कंक्रीट शुड बी डेफिनेटली अबव 0 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रिफरेबली 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 डिग्री के नीचे जो है वो कंक्रीटिंग हमको अवॉइड ही करना है, टेम्परेचर होना चाहिए 20 से 30 डिग्री के बीच में। द प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट इन कोल्ड वेदर कॉजेज peculiar problems such as delay in setting and hardening, harm to concrete in plastic conditions due to formation of ice lenses. तो टेम्परेचर अगर बिलो 0 डिग्री हुआ तो क्या होगा, कंक्रीट सेट नहीं हो पाएगा और वाटर जो है वो क्रिस्टल हो जाएगा, आइस में टर्न हो जाएगा, आइस क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाएंगे, तो उसकी वजह से कंक्रीट हाइड्रेट ही नहीं हो पाएगा, तो वो स्ट्रेंथ ही नहीं गेन कर पाएगा, इसलिए फॉर्म वर्क रिमूवल में डिले होगा। Then hence the concreting should be at sufficiently high temperature. Then effects of cold weather concreting. Due to cold weather, concrete shows reduced rate of hardening, which results delay in removal of formwork. ये effects. Then water added in concrete gets frozen quickly, which results in difficulty in mixing, showing less workability of concrete. तो concrete workable नहीं रहेगा क्योंकि जो आइस है वो वाटर जो है उसका बनेगा आइस, तो वर्केबिलिटी भी नहीं मिल पाएगी, लेस वर्केबिलिटी रहेगी। देन स्नोफॉल ड्यूरिंग कंक्रीटिंग इंक्रीजेज द वाटर सीमेंट रेशियो विच में लीड टू सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग इन कंक्रीट। तो वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ गया, सपोज स्नोफॉल अगर हुआ तो वो क्या होगा, ड्यूरिंग कंक्रीटिंग अगर स्नोफॉल हो रहा है तो उससे सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग आने के चांसेस है। देन ऑर्डिनरी मेथड ऑफ क्यूरिंग बिकम्स अनसूटेबल इन सच ह्यूमिड कंडीशंस ड्यू टू फ्रीजिंग एंड थॉइंग इफेक्ट। कंक्रीट में result in contraction cracks. Then due to excessive moisture, lumps get formed in the cement bag. During transportation, concrete becomes hard due to ice formation of water added. Then precautions. Concrete work should be done during daytime or on sunny days. Then warm water should be added for mixing of ingredients of concrete. Warm water ही use करना पड़ेगा
जैसे ये कोल्डन कंट्रीज़ में होता है एक्चुअली ये सिचुएशन, हमारे कंट्री में ऐसी सिचुएशन आती नहीं है। कोल्डन कंट्रीज़ में माइनस जहाँ टेम्परेचर होता है वहाँ ये प्रॉब्लम जाता है। देन बिफोर प्लेसिंग ऑफ कॉन्क्रीट द फॉर्म्ड आइस, स्नो और फ्रॉस्ट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम फॉर्मवर्क। तो इन एनी केस कॉन्क्रीट के अंदर आइस जो फॉर्म हुआ है, स्नो या फ्रॉस्टिंग हुआ है, वो सब रिमूव करना है, फॉर्म वर्क के अंदर वो जाना ही नहीं चाहिए। देन द एक्सीलरेटिंग एडमिक्सचर्स डाल के हम यूज़ कर सकते हैं एक्सीलरेटिंग एडमिक्सचर्स, जिससे क्या होगा, हार्डनिंग ऑफ कॉन्क्रीट हमारा इंक्रीज हो जाएगा। देन प्रोटेक्टिव कवर शुड बी यूज्ड ओवर कास्टेड कॉन्क्रीट टू अवॉइड कोल्ड विंड्स एंड स्नोफॉल। तो अगर सपोज कॉन्क्रीटिंग हम कर रहे हैं और उस पर कोल्ड विंड्स और स्नोफॉल चल रहा है तो उस समय क्या होगा, प्रोटेक्टिव कवरिंग हमको करके रखना पड़ेगा। देन एग्रीगेट शुड बी हीटेड बिफोर इट्स यूज। देन समरी, what is extreme weather concreting, hot weather concreting, their effects and precaution, cold weather concreting, their effects and precaution. Then assignment question, enlist the effects of hot weather and cold weather on concrete, then state the precaution taken during hot weather and cold weather concreting. Then this was about today's lecture. Thank you.